Start recording. So this whole meeting is being recorded now. So Hmm. अब आप बात करेंगे देवांग पटेल. कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अहमदाबाद से, आनंद से, मुंबई से? I am talking from Anand right now, Khambat, खंबात से. and few days I will be talking from Mangaon. अच्छा And in the last 1 year, I have been talking since from 24 cities. अच्छा अच्छा ठीक है. चलिए, कम टू द पॉइंट. Yes. So जब भी हम travel कर रहे थे, the basic reason of traveling was Gina. Gina, come here 1 minute. Acha, she's busy right now. So basically, we have been traveling since a long time और हमने कोशिश की है कि अपना भारत में सबसे बड़ी दुविधा क्या है. तो हम जब नॉर्थ गए थे तो हमें खाली 4-5 टाइप के अनाज मिल रहे थे. थोड़ा गेहूं, चावल. देवांग थोड़ा अपना अपना इंट्रो भी दे दीजिए शॉर्ट में. 2 मिनट इंट्रो, योर बैकग्राउंड. हाँ, so I have cleared my final CA first group. I have audited more than 6 CA forms. I have audited in more than 6 CA firms in Mumbai. I have worked for a CPA firm in East Africa. After that, I worked for a mining company as a financial controller in Africa. And after that, I worked for a $1 billion company in Nairobi, Kenya. And when I left my job in September 2018, and since then I have been traveling across India, and I have been helping people. I have been knowing many things when I traveled, and now I want to get into organic farming. I have learned organic farming in Badlapur for 1 month under Krishi Bhushan Rajendra Bhatt, and I also visited Madhya Pradesh, Arda Deepak Sajde's farm for 5 days, and it was very enlightening. And it was a very informative and enlightening experience when I met him out there, and I Okay, tried to understand what Devang, is the real problem. Yeah, basically you quit your job, you left your job in yeah, I 2017. left my high-paying job. So after that, I how is left it my working out? high-paying How are you job in surviving 2000. after you quit your job? आपकी जॉब छोड़ने के बाद आप कैसे सर्वाइव कर Well, रहे there is no real problem of surviving actually. In India, you can really survive at very low money also, 3,000 rupees a month also. Like you see, I'm wearing lungi right now. Someone has gifted me lungi, हैं? and it is much better. It is much better than chati also. So, so there is no problem of survival. Food, ठीक though है. we've had free food हाँ, since so many people gave us just free food. हाँ, वैसे भी जहर है खाने में, तो हम्म, वैसे भी जहर उगलते ही है लोग, और वैसे भी जहर दे रहे फ्री में, तो इट्स नॉट अ बिग डील ऑफ सर्वाइविंग. हम्म. We have hitchhiked across the country, hitchhiking across the country, and I will tell you, it was a very good experience. People really help you. You can keep on traveling hitchhiking. In fact, Gina, who is with me, she hitchhiked faster than transport vehicle also. I was having a she reached before me. I said, okay, I will catch some, this rickshaw, or I will catch a bus and come. And she said, okay, I'm going. So she left and she hitchhiked even faster than me. हम्म, So I said, how did you reach? She said, I just did this, I just did this. And people really gave lift. And I also seen in South when I went to visit Auroville, there is a trend of lift, giving lift to people. It's really nice across the country. You can hitchhike across the country, and Gina is going to write a book on how to travel across India free, how to live in India for free, and ठीक है. she will tell you how you need to live for free. ठीक है देवांग, सबसे पहले आप मुझे उसके बारे में बताइए, वो जो फार्मिंग अपॉर्चुनिटी थी एज अ जॉब, उसके बारे में बताइए. See, I have met a person, the head of. No, I've not met him, but I have. Gina just found out this
person's name Harish Tiwari. He's the head of WOOF India. WWOOF WOOF India. अच्छा. They are. It is a very known organization throughout the world, Hmm. just like Facebook and Twitter and all these are. Hmm. So they basically arrange your stay and accommodation. That is basically called volunteering. Your stay and accommodation is taken care of, and you are contributing to the farm, the organic farmer. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Like if I want You to have to register. You have to register yourself with WOOF India. You have to pay around 40 euros for one single person, and as a couple, if you go, you have to pay 60 euros. And this is a membership throughout the year. पूरे साल की membership है, and he will guide you to the genuine farms. He will guide you to genuine farms. You go there, you work out there, you get accommodation and food free. You get to know so many things, experience the whole organic farming sector. And I guess Vandana Shiva has also given good feedback on WOOF India, तो that they are doing really good work उनकी throughout India. उनकी वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप ये कह रहे हो? Yes, you can go and register. He will give you the details of all the farms which are doing this activity and helping the whole environment. And as you know, we are moving to sustainable development agenda next year, whether it is our agenda or whether it is someone else's agenda. But sustainable development agenda we are moving. So we should actually try and be sustainable by ourselves. We can at least grow our own food. That is the most important thing. Whether you sing a song or whether you dance or whatever you do, but if you are not able to produce your own food, then I think it is a disaster. So do you also get salary when you join that organization and become a farmer? You also Well, get salary? some farms do offer you salary. Say like अच्छा. Paboy Greens is there in Assam. If you go, they are ready to offer you 3,000 to 6,000 rupees a month salary, provided he has confidence that the work which you do will be done without any kind of you do it seriously. Basically, you need to do your work seriously, because they have found out that Indians are the least hardworking people when it comes to farming or do physical activities. As you know, foreigners are doing more physical activity in India. अच्छा अच्छा. तो उसके लिए मतलब do I need to have an exposure, an experience in farming, या फिर चलेगा मैं एकदम newbie बन के चला जाऊं तो भी चलेगा? They'll train me. You don't need experience in farming, but you need to know the principles of farming. तो ये एकदम राइट अवे मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या फिर इसके लिए कुछ वेटिंग है, या फिर कुछ झोल है, या फिर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, क्या है in your experience? No, it's not a long process. You talk to Harish Tiwari, and he will guide you that where you can go and work. It's not a long process. It's just online also. You can just learn a basic course, do organic farming, learn it online. It's a 7-day course. Every day you have to give like 15 minutes. That's it, so that you get the basic things right. You don't need to be explained everything on the field. So you do the basic thing, and then you can go and work on the field. ओके. तो हरीश तिवारी का नंबर हम यहाँ डाल सकते हैं, मतलब when this video goes on YouTube, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं क्या हरीश तिवारी का नंबर? Yeah, sure, you can do it. Yes, you can do it. So that one, but I just request that I request that only serious people go for it, because it's a serious work, and we don't want to burden the organic farmer more. अच्छा ठीक है. we need to reduce his problems, not to increase his problems. Yeah. Okay. अच्छा ठीक है. दूसरी बात, आप कुछ कोर्स चला रहे थे, आई थिंक रत्ना से, कहाँ पर, महाराष्ट्र में कहीं तो ना, आप एक कोर्स चला रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग का. You got a land. What was that? See, why I have attended 1 month training from Krishi Bhushan Rajendra Bhatt, who has been doing organic farming since 30 years in Badlapur. So there is a difference between organic farming and organic production. Organic farming is basically farming to keep the ecology intact.
and organic production is basically to increase the output organically. अच्छा 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 ओके 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 For human consumption, you can basically say it is organic production is human centric, but organic farming is not only human centric. You are looking at the whole ecology as a whole to sustain the whole world's species. ठीक है ठीक है ओके हाँ तो बताइए आगे कंटिन्यू विद योर कोर्स एंड योर एक्सपीरियंस towards organic farming. So I worked for I learned 1 month on the field with Rajendra Bhatt in Badlapur. After that, I traveled across India, visited more than 24 cities, and I also met Deepak Sajde in Madhya Pradesh. There I spent 5 days, but those 5 days were as दीपक long सचदेव as वो एकदम बड़े से दाढ़ी वाले जो yes, गुरु yes. हैं उनके क्या नाम है बेल्छी के Vandana Shiva ke. नहीं बेल्छी Vandana क्या नाम Shiva ke. अच्छा अच्छा And also Taranchand Belji, they are ताराचंद also बेल्छी connected हाँ with each other. हाँ हाँ Yeah, they are also connected with each other. But Tarachand Belji right now is only concentrating on teaching. But Deepak Sajde has been doing it as well as teaching. ठीक है then what next Yeah, and then I came back to from the travel. I went to Auroville. I met many people out there. I met a Swiss guy farming out there. I met a South African guy farming out there organically, doing one straw revolution. And the Swiss guy is experimenting on different species out there in Auroville, trying to grow in a different way, grow crops in a different way. So I met them, and then there is another person in Buddha Garden in Auroville. So there are three different farms in Buddha in Auroville who are teaching or giving hands-on experience to farm organically. Then I went to Mahabalipuram to see the Bharatnatyam dance out there. It was fantastic, amazing. And then I traveled a lot of places, met a lot of people, connected to organic farmers throughout India. Sunil Kumar I met in Karnal, Haryana. He is doing organic farming. After his civil engineering, he left. He didn't do a job. He didn't take up job in government. He's doing organic farming since 1 year on 1 acre farm in Karnal. So I met him and he told me a lot of things about organic farming and let's do something in it. And then I've been trading in commodities, trying to help the farmer get a better price. I also bought some हाँ एक मिनट rice and नमन wheat. मोंगा कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ नमन मोंगा अनम्यूट करके कुछ कहना चाहिए तो बोलिए नहीं सर गलती से हो गया था माफी अच्छा ठीक है ओके हाँ कंटिन्यू So I met him and I bought some wheat, rice, besan worth around more than 8,500 rupees from him, and I sold it from my house in Mumbai to नहीं my नहीं friends. ये बात दोबारा से बताइए ये करनाल में बेसिकली प्रोडक्शन हो रहा था इन सब चीजों का Yes, he's doing it. Sunil Kumarji is doing it with collective other farmers out there. So वो खुद उन्होंने प्रोडक्शन भी कर रहे organic हैं farm. और ही जस्ट Yes. टेकिंग केयर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट No, he's also doing the product. He's doing production. He's spreading awareness for organic farmers. He's getting people together, just like awareness, just like you are doing, trying to get So, people together to do something. when you got associated with him तो आपका रोल क्या था you took some products and sold it in Mumbai what exactly was that Yeah. I kept it at my home. I called for all this products, which is raw products like besan ka hai, फिर wheat है, फिर wheat के दाने हैं, तो ये सब ये आप सब लेकर आए उधर सरसों का तेल. हाँ, सरसों का तेल है. तो ये आपके वहां से मैंने मंगा लिया ट्रांसपोर्ट से मैंने मंगा लिया. तो आपके होम कंजम्पशन के लिए या फिर और ज्यादा क्वांटिटी में
नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में होम कंज्यूम भी किया, दोस्तों को भी दे दिया, उनको भी टेस्ट करवाया। उनका अलग राइस भी है, दो अलग अलग प्रकार के राइस भी है। तो एक दोस्त को दिया मैंने 170 रुपीज पर केजी पे दिया मैंने उसको, राइस? 170 रुपीज पर यस। तो इन जनरल सो राइस कितने का आता है मार्केट में, उस प्रकार इट का? वेरीज फ्रॉम डिफरेंट 40 रुपीज से लेके इट कैन गो अप टू 150, 170, 200, 220 डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्राइस इट इज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वो आपने फिर कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज दैट आई फाउंड के सबसे ज्यादा दिक्कत कंज्यूमर को प्राइस की आ रही है, प्राइस। सो लेट अस ग्रो समथिंग विच इज मोर रीजनेबल फॉर द कंज्यूमर एंड रिक्वायर्स लेस वाटर विच इज गुड फॉर द environment also, because ये क्या है, people are not aware कि बासमती uses so many liters of water per kg. It's better you have red rice ना, whether you grow red rice लेकिन only। ये जो अपना मेट्रो सिटी है इधर तो सब प्राइसेस में चल रहा है ना, अमेजन के द्वारा भी जो भी आप बोलेंगे ये ऑर्गेनिक है, बढ़िया से उसका लोगो बना दीजिए, तो वो दलड़े से, आई मीन थिंग्स आर बीइंग सोल्ड। Things are being sold, whatever I would say organic, to source organic is less than 1% possible in India, because real organic is not नहीं नहीं what नहीं, they are आप selling समझे नहीं, online। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ। मार्केट रीच है और मार्केट में डिमांड भी है, मैं ये कह रहा हूँ। सो मूवमेंट हो रहा प्रोडक्ट का, बहुत है, तो बहुत है। प्रोडक्ट जेन्युइन तो नहीं है अमेजन पे जो बिक रहा है, बट मूवमेंट हो हाँ, रहा है वहां पर, मार्केट में रीच है, मार्केट में पेनिट्रेशन है और मार्केट में डिमांड भी है। बहुत है, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड। ठीक है, तो मतलब सुपीरियर सोसाइटी लेवल तक तो हमारे पास काफी, आई मीन वी कैन पेनिट्रेट टू डिसेंट लेवल इन द कंट्री, और फिर और डिसेंट भी। नहीं, बहुत बड़ा लेवल पे पेनिट्रेट कर सकते हैं। डिसेंट हाँ, नहीं, अभी तो एमपीज नेटवर्क। आल्सो वांट तूर दाल। आई विल शो यू। मैं 2 दिन पहले एमपी से मिला, यहाँ के एमपी से। वेट, आई विल शो यू। क्या वो मितेश, एमपी मितेश, इधर बैठा है क्या? अच्छा मितेश, ओके, मितेश भाई। पटेल जी से मिला मैं। मितेश पटेल जी से मिला, उनका हाँ, तूर दाल का बिजनेस है हाँ, सिंस मोर देन मेनी मेनी इयर्स, 40 इयर्स से ज्यादा, 1950 से कर रहे हैं। नाउ ही इज आल्सो आस्किंग फॉर ऑर्गेनिक तूर दाल फ्रॉम मी। हाँ, बोला इतना सारा ऑर्गेनिक तूर तूर दाल में दूं कहाँ से हाँ, आपको? हाँ, हाँ। लोग ही है 500 से ज्यादा नहीं है ऑर्गेनिक फार्मर्स अक्रॉस द होल इंडिया। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। तो उनके पास उतना प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ करते होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट दे ओनली कंज्यूम फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, तो आपने वो इसीलिए बंद कर दिया या रुक गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ सप्लाई, या बोल रहे नॉट बिकॉज ऑफ लैक यस, ऑफ इनफ डिमांड और अवेयरनेस? यस, 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 यस। अच्छा। अवेयरनेस तो अवेयरनेस भी चाहिए। देर यू नीड टू अवेयर ऑल्सो। डिमांड है, खाली वो डिमांड इसके लिए है कि भाई बारगांव अभी अवेयरनेस ऑलरेडी फैल गया है। आउट ऑफ इंडिया लोगों को पता है ऑर्गेनिक खाना अच्छा है सेहत के लिए, हम्म। इसलिए इंडिया में भी वो आ गया है। बट उनको अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि दे पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट इट। फुल अवेयरनेस शुड बी देयर। ऐसा नहीं कि खाली ऑर्गेनिक खाओ बस, पेस्टिसाइड फ्री है। You need to work on the awareness part also a lot in India, जिसके automatically people will start producing, and then since there is demand, it will, in India demand रहेगी तो it will be fulfilled, someone or the other will definitely fulfill. ठीक है, It is समझ गया। not practical to import all the organic products from other countries because of carbon loss. हम्म ठीक है। अच्छा सुनो, अभी अभी आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो बताओ। बहुत ही बढ़िया रहा है। कहाँ ऐसे रहा है? चमत्कार देखे डिस्क्राइब इट। एट बदलापुर फार्म। अच्छा। राजेंद्र जी के बदलापुर में फार्म जो है उनका, उन्होंने जो मुझे एक्सपीरियंस दिलाया है ट्रीज और उनका जो फंडामेंटल साइंस का, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। एंड आई फील लाइक जस्ट फार्मिंग थ्रू आउट माई लाइफ। अच्छा, और वो आप बता रहे थे आपको कोई बहुत बड़ी जमीन मिली है वहां पर, आपने कुछ कोर्स ऑर्गेनाइज किया है था, उसका अच्छा फीडबैक आया था, नाउ यू गोइंग टू लाइक डू अनदर सेशन फॉर दैट कोर्स, आपने कुछ पोस्ट किया था ना, आई थिंक दैट वाज यू। अभी एक है इंडस्ट्रियलिस्ट से बात चल रही है, वो बोल रहे हैं उनकी जमीन है, उन पे काम करना है। तो वो
जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा मैं उनसे मिलूंगा और वहां पे काम शुरू करेंगे। नहीं नहीं, आपने एक कोर्स लॉन्च किया था आई थिंक, और प्रोबेबली दैट वाज एन ऑनलाइन मैंने कोर्स। मैंने नहीं मैंने कोर्स लॉन्च नहीं किया था, डॉक्टर प्रताप नाइकवाड़े ने कोर्स लॉन्च किया था और उसकी लिंक मैं आपको अभी भेज दूंगा। ये कोर्स इज गोइंग ऑन, इट इज ऑन ऑन गोइंग कोर्स। It is just a small general knowledge type course. It's not a full-fledged course or a basic thing, I would say practically. It's just to create awareness, it's I would say. ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सुपीरियर सोसाइटी में काफी लोग हैं जो कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, कई लोग हैं जो फार्मिंग भी करना चाहते हैं। आई थिंक दैट इज एड्रेस्ड इन दैट पार्ट, जो हरीश तिवारी को कांटेक्ट करने वाला पार्ट है उसके अंदर आई थिंक दैट क्वेरी इज एड्रेस्ड ऑलरेडी, है ना, जो करना चाहते हैं फार्मिंग, राइट। बाकी Yes. उसके अलावा जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? व्हाट कैन बी डन इन दैट रिगार्ड? जो बिजनेस करना चाहते हैं दे नीड टू फर्स्ट हैव देयर ओन मार्केटिंग नेटवर्क, क्योंकि इट इज नॉट इट्स फर्स्टली टू सेल एट हायर प्राइस इज नॉट इजी. So you need to do a good marketing, you need to give them awareness. ये जो भी बिजनेसमैन है उनको मार्केटिंग नेटवर्क ही हो गया। सुपीरियर सोसाइटी हमारा जो है, जो फेसबुक ग्रुप है, जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये हमारा मार्केटिंग नेटवर्क हो गया। और उसके बाद माउथ टू माउथ आउट हो गया, बेसिकली क्या वर्ड ऑफ माउथ से हो गया। हाँ, पर अवेयरनेस फैलाना जरूरी है. अवेयरनेस मीन्स द राइट इंफॉर्मेशन एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक फार्मर्स, देन ओनली पीपल विल, उनका बिजनेस चलेगा, लोग उनसे लेंगे. क्योंकि अब तक क्या है, कंज्यूमर अपना हिसाब से डिमांड कर रहा है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए. अभी सीजन नहीं है तो कहाँ से होगा वो. तो ऑर्गेनिक में ऐसा है कि कंज्यूमर शुड बी मेड प्रॉपरली अवेयर. So this businessman should also take up this work of creating awareness, तभी जाके उनका माल बिकेगा. अरे बोलूं मैं बीच में? हाँ बोलो बोलो। अरे सागर और भाई कैसे हो? मस्त ना? अरे पता चल गया होगा ना? अरे सागर मैं बोल कह रहा रहा है हूँ ये। कि सबसे बड़ी ना डिफिकल्टी होती है एक बीच में। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं हाँ, नहीं, आ रही है. कट गई वो। हाँ, मैं ये आखिरी बोल रहा वाक्य हूँ, कट गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी ना बहुत से लोग मुझे मिले इस बीच, जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, जो ऑर्गेनिक सामान दे रहे हैं ना, और वो अभी से नहीं कर रहे, उनके पास ना लोग नहीं है। जैसे हमारे पास तो फिर भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और सारी चीजें हैं ना, उनके पास लोग, उन्होंने बोला जब उन्होंने शुरू किया 1-2 साल पहले, बहुत से लोग तो ऐसे 3-3 साल से ऑर्गेनिक कर रहे हैं, कुछ मेरठ में रह रहे हैं, कुछ हरियाणा में रह रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह रह रहे हैं ना। लेकिन उनका 1-2 साल तो चला, उसके बाद ना वो लोग ऐसा बोलते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, कि उनके पास ना प्रॉपर कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट आना बंद हो जाता है। ठीक है, अगर किसी और के साथ, दूसरे के साथ कर रहे हैं तो, और अगर वो खुद करते हैं तो उनके साथ सीजनल प्रॉब्लम आ जाती है। सीजनल का मतलब ऐसा कि गर्मी सर्दी में अलग ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम कुछ भी, जैसे घिया, तोरी, टिंडे कुछ भी उगा रहे हैं, वो सर्दी में नहीं उगेगा या गर्मी में नहीं उगेगा, समझ रहे हो बात, है ना? और वो फिर सामने से जब वो 6 महीने के बाद उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वो कस्टमर उनका दोबारा रहता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसको मैं समझ गया हूँ, पर यही अपने को चेंज करना है, यही मेंटालिटी चेंज करनी है कस्टमर की, कि भाई तुमको जो सीजन में उग रहा है वो ही परचेस करो. ऑफ सीजन में वो चीज खराब होती है के और हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती, वो बात करेक्ट भी बोल सकते हैं, है तो ना? लेकिन वो लोग समझते नहीं है ना। वो समझेंगे जब सप्लाई कम हो जाएगा, ऑलरेडी गिर चुका है, प्रोडक्शन हैज फॉलन डाउन बिकॉज ऑफ यूजिंग कंटिन्यूस यूरिया एंड डीएपी. सो एज एंड व्हेन उनको पता चलेगा कि भाई अभी बिग आइटम्स इतनी ही है, इससे ज्यादा आइटम्स नहीं है, तो उन लोग अपने आप वो आइटम खरीदना लगेंगे, क्योंकि खाने के लिए अनाज तो चाहिए ना. दे नीड फूड. अभी कितना इंपोर्ट करेंगे? हाउ मच विल यू कीप इंपोर्टिंग? So they will automatically buy what is available. So you need to basically exist out there. Bus just be there with your seasonal products. Just be there. All right. Just लेकिन ऐसा बोलो.
बहुत सारे लोगों ने दुकान बंद भी हो गई है, काफी लोगों की दुकान चालू होके बंद भी कर दी उन्होंने। बैंगलोर में, हैदराबाद में जाओ, बैंगलोर में जाओ, नहीं, साउथ ऐसा में तो बहुत जाओ। जगह हुआ है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, लोगों ने खोला 2 साल चलाया, ऐसे लोग भी Why? हैं There जिन्होंने are 1 साल चलाया reasons. लेकिन बंद कर दिया। There are other reasons also. If they are not selling genuine हम्म। organic, तो obviously बंद हो हम्म। सकती है because of that. But मेरे को नहीं, ऑर्गेनिक बट खाना मिल जाए लेकिन कभी क्या भी, I will buy organic food whenever I get it. I will buy. नहीं, लेकिन फिर तो ये वहाँ ऐसा नहीं लगता कि पार्शियलिटी वाली बात हो गई कि जिसके पास पैसा है या 170-200 रुपए किलो वाले चावल खरीद रहा है वही खाए, साला गरीब ऐसी तैसी कराए, ये मैटर नहीं भी आ नहीं, गया you यहाँ पे। grow red rice. No. You, that's why production में you grow red rice. You grow rice which is much cheaper. That's why we need to change ये awareness की बात आ गई कि don't grow one type of rice which requires more water. Grow some other rice. Grow red rice. Grow ये black rice भी आता है, वो भी अच्छा रहता है। उसको तुम चाय की तरह पी सकते हो उबाल के। साउथ में से मैंने वो एक राइस आता है, वो उसको तुम चाय की तरह पी सकते हो, उबाल के मस्त टेस्ट आता है उसका। वो तो सूप की तरह जो बन जाता है वही ना। हाँ, तो it's on to the people what they want. Millets भी आते हैं, millets also you can eat. वो उससे अच्छा पेट भर जाता है, पर थोड़ा फिर हार्ड वर्क करना जरूरी है क्योंकि वो डाइजेशन के लिए यू नीड टू वर्क हार्डर। यू टू डाइजेस्ट द मिलेट्स इज नॉट सो इजी, बट इफ दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द फील्ड दे कैन ईट मिलेट्स आल्सो। खडेरवल्ली जो है, मिलेट मैन ऑफ इंडिया, खडेरवल्ली, उनका काफी कॉन्फ्रेंसेस आते हैं, मुंबई में करते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस, सब जगह करते हैं वो। आफ्टर हिज कॉन्फ्रेंस ही इज सेलिंग हिज मिलेट्स एंड कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नेचुरल, वेरी नाइस। आई हैड दैट नेचुरल कोकोनट ऑयल, वेरी गुड। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑर्गेनिक चीज है, कुछ भी है, उसकी जो क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक चीज है जल्दी खराब हो जाएगी 2 या 3 दिन में, लेकिन जो नहीं, उनकी शेल्फ केमिकल लाइफ इज वाली चीजें मोर, होती शेल्फ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिक इज मोर देन केमिकल। लेकिन यार हमने तो यही सुना और देखा भी है कि जो यही तो अवेयरनेस करनी है, ये इसी की तो अवेयरनेस हमें लोगों को देनी है कि भाई शेल्फ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिक इज मोर देन इनऑर्गेनिक, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इज मोर देन इनऑर्गेनिक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग and it will remain stable. But in inorganic farming, production will increase with the more increase of usage of urea and DAP. But after 13 years, the production will fall down. और सबसे बड़ा जो चैलेंज है यार, लोगों को जो भरोसा दिलाना वो कि भाई ले ले, या फिर ऐसा किया जाए कि भाई तेरे को लेना हो ले वरना निकल चल। भरोसा कभी दिला पाओगे? पहले उनको विजिट मरवाओ, फार्म पे विजिट मरवाओ, उनको बोलो जाओ फार्म पे, अपने फार्म, इतने साल तुमने अनाज खाया, अभी कभी फार्मर से मिलके तो आओ, तुमने इतने साल अनाज खाया है, कभी एक बार फार्मर को मिलके आए हो? तो इस चीज का तो वो जवाब दे देंगे ना कि हमारे पास ये जो लाइसेंसिंग होती है, नहीं टाइम तो है ही नहीं। और उसके बाद वो जो ये लाइसेंसिंग प्रोसेस जो सबसे लाइसेंस के थ्रू पूरी दुनिया को क्या हर आदमी को चूतिया बनाया जाता है ना, कि लाइसेंस ले लो और फिर उसके बाद आप धड़ल्ले से कुछ भी बेचो, है ना। तो हर आदमी जो जैसे नेस्ले के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या और भी दुनिया जान के आ रहे हैं, तो वो एक ही बार तो लाइसेंस लेते हैं, उनकी बार बार टेस्टिंग तो होती नहीं है, लेकिन वो लोग उस लाइसेंस पे भरोसा करते हैं। तो एक उनको ये भी तो हमें बताना पड़ेगा ना कि तुम इस लाइसेंसिंग के चक्करों में मत पड़ो, और ये एक ही बार होता है, ऐसा है वैसा है, वो भी तो अवेयरनेस जरूरी है ना। See, consumer is not so foolish person. Understand that. Consumer is also smart. तुम भले उनको बोलो कि हाँ ये है वो है, लाइसेंस है, ये है वो है, उसको पता है कि असली चीज क्या है। उसको अगर असली चीज आप दोगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। अभी देखो सदगुरु का देख लो, संजीवनी जो सदगुरु दे रहे हैं वो फुल डिमांड में है, उतना डिमांड है उसका कि ना पूछो। एक बार उन्होंने दे दिया वो संजीवनी का जो 5 ग्रेन्स का मिक्स करके पाउडर देते हैं, वो कंप्लीटली नेचुरल है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी दोगे तो क्या है, लाइसेंस वाइसेंस की कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कस्टमर भी खरीदता जाएगा। देवांग, इसमें क्रेडिबिलिटी का भी पॉइंट है बेसिकली। जैसे कि आप जाते हैं ना कि पतंजलि लिखा हुआ है तो लोग मान लेते हैं कि अच्छा ही होगा,
डाबर का है तो अच्छा ही होगा। तो जैसे कि आई हैव क्रेडिबिलिटी ऑफ मनिंदर, तो मनिंदर के बारे में जब भी बात करता हूँ तो लोग मुझसे कांटेक्ट मांगते हैं, बिकॉज आई ट्रस्ट मनिंदर एंड पीपल ट्रस्ट मी। सो उस वजह से बेसिकली मनिंदर का बेचा हुआ प्रोडक्ट ट्रस्टवर्दी हो गया। सो दिस इज व्हाट क्रेडिबिलिटी इज। सो दैट क्रेडिबिलिटी हैज टू लाइक एक्सपैंड एट अ लार्जर लेवल। वहां पर उसका credibility will expand automatically if you're giving a quality product. Your credibility will expand automatically. Your credibility cannot be bought. Credibility cannot be bought. It has to be achieved during the lifetime. हाँ, तो हमने इन्वेंट नहीं किया ना क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी हैज डायरेक्टली कम फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। Yes, yes. अच्छा, मीटिंग का लास्ट 5 मिनट बचा है, तो किसी को और कुछ कहना है तो कहिए, या पूछना तो पूछिए, या फिर आपको कुछ और ऐड करना है देवांग, या फिर आपको और मीटिंग चाहिए इसके आगे? देखो, जो भी सीरियसली इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, दे कैन हैव मीटिंग्स विद मी 24/7। कभी भी आई एम ओपन टू देम फॉर दिस मीटिंग। whoever is seriously interested in this field, I am open 24/7 for them. मैं रात को भी सोते हुए अगर जगा दिया तो भी I am ready for them. सागर, तेरी बात हो गई ना पूरी? हाँ, अभी है, लेकिन मैं फिर वो नॉर्मल फोन करूंगा अभी देवांग भाई। पॉइंट ये है कि यार जिस स्तर पर अभी जो मार्केट पहुंच गया ना बाकी चीजों का, उस स्तर से तुलना करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। हमको तो देखना है कि हाँ, तो एक ना देवांग भाई फैलाना कैसे। बोलूं बीच में? हाँ बोलो, लेकिन 4 मिनट बचा है आखिरी का। अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम यार जैसे देवांग भाई ने भी अपने प्रोडक्ट को ना, हम सब ने ना बड़ी बड़ी कंपनियों से या बड़े बड़े जितने भी मार्केट चैनल है उनसे कंपेयर किया है, लेकिन हम उस स्तर के तो है ही नहीं, है ना। तो हमें ये बात भी नोटिस करनी चाहिए। और हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नेम भी नहीं, मतलब वैसा कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है ना, कि जैसे डाबर हो गया, जैसे हितेश भाई ने बोला, या पतंजलि या कुछ भी हो गया, है ना। वो लोग तो नाम से गंद भी बेच देंगे तो बिकेगा ना, लेकिन अपना तो नहीं। हम पतंजलि के सामने ही उससे अच्छा प्रोडक्ट रखें तो बिकेगा? बताओ। अरे लेकिन हमारी कम्युनिटी में तो बिकेगा ना, हमारे आसपास तो बिकेगा ना। पतंजलि ने जब भी चालू किया था, पतंजलि ने कैसे चालू किया था? कैसे चालू किया था? पतंजलि ने जैसे चालू किया था वैसे अपने को चालू करना है। राइट। पतंजलि ने भी कभी चालू किया था कि नहीं धंधा करना? हाँ बिल्कुल। क्या ऐसे ही आ गए सीधा, पैदा होते ही हो गए पतंजलि? नहीं, लेकिन वो भी क्या बोलते हैं, हमने डायरेक्ट उन्हीं को पकड़ा ना, क्या बोलते हैं, जैसे हमारा टारगेट पॉइंट तो वही थे ना, कि इतने बड़े बड़े लोग या ये या वो, ये सब इसलिए मैंने बोला। जैसे अभी वो क्या, अरे यार मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहते यार, साला बात करते करते भूल जाता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है मेरी यार, आधे से ज्यादा टाइम तो भूल जाता हूँ। इसको अगर देखो दोबारा इतने बड़े बड़े ब्रांड से हमें देखना है कि शुरुआत कैसे करनी है, और फिर आगे जाएंगे तो और पता चलेगी, नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए लोगों का विश्वास आएगा, और फिर फंडिंग वगैरह। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो अभी तो इतना ही है। चलिए, आखिरी के 3 मिनट बचे हैं, और आप अपना नंबर यहाँ पर बता दीजिए देवांग सबको, ताकि पीपल कैन गेट इन टच विद यू। तो बोल दीजिए। 7738226993। ओके, ये चला जाएगा यूट्यूब पर 30,000 लोगों के सामने। फिर सिर दर्द होगा। जाने दो, और क्या, अभी कब तक छुपे रहेंगे? जाएगा कभी ना कभी तो लाइमलाइट में आना ही है। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और बाकी जो लोगों को कुछ करना है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कर देंगे, तो यू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग टू देम। अरे ओके। हाँ, 2 मिनट बचा है। नहीं, हम जल्दी खत्म कर देते हैं। वी आर मोर एफिशिएंट, वी फिनिश द सेमिनार मच फास्टर। चलिए, बाकी सब लोग का आने के लिए बहुत धन्यवाद, और सागर सक्सेना का विशेष धन्यवाद। हाँ, मैंने थोड़ा सा चूतियापा फैलाया आके। चलिए भाई जी, नमस्ते। नमस्ते।